نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 142 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اسباق میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ بحر قلزم کے راستے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہاں سے آزاد فرما دیا، اور فرعونی لشکر جن کی تعداد 12 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم میں غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ بنی اسرائیل بحر قلزم کراس کرنے کے بعد آگے ایک قوم کے پاس سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ قوم کچھ بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ ان کو دیکھتے ہی ان کے ذہنوں میں بھی خیال آیا کہ ہمارے پاس بھی ایسے معبود ہوں کہ ہم بھی ان کی پوجا کریں۔ ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے درخواست پیش کر دی، ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دیجئے، ہم بھی ان کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یہاں سے گزرنے کے بعد یہ لوگ صحرائے سینا وہاں جا کر قیام فرما ہوئے۔ صحرا میں اللہ تعالیٰ نے ان کا قیام فرما دیا۔ وہ لوگ جو کہ آج تک گھروں میں رہتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے صحرا کے اندر قیام فرمانے کا اعلان کر دیا، یہاں ٹھہر جاؤ، خانہ بدوشی کی زندگی۔ چونکہ بنی اسرائیل کی قوم بہت عرصے سے ایک تو غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، نمبر 2 فرعون اور اس کی قوم کو دیکھ کر ان کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت پیدا ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے صحرائے سینا میں ان کے قیام کا اعلان فرما دیا۔ یہاں پر یہ قیام فرما تھے کہ اب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی قانون دے دیں جس کے مطابق ہم عبادت بھی کیا کریں اور ساری ریاضت بھی کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم آپ کو ایک کتاب عطا فرمائیں گے، یہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کی پیروی کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر یہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ 30 دن کا اعتکاف کوہ طور پر آ کر فرمائیے، پھر ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کا کہہ کر چلے گئے۔ وہاں پر جب 30 دن مکمل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے کلیم 10 دن اور لگائیے، 10 دن کا اعتکاف اور کیجئے۔ چنانچہ آپ نے 40 دن رات کا اعتکاف فرمایا۔ 40 راتوں کا قرآن پاک میں جو لفظ آتا ہے وہ رات کا مراد، اس سے دن رات مراد ہے۔
24 घंटे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पीछे अपनी कौम को फरमा कर गए थे कि मैं 30 दिन में वापस आ रहा हूँ। जब 30 दिन पूरे हुए तो कौम ने सामरी जादूगर था उसको कहा कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो कहीं गुम गए, तो लिहाजा आप हमारे लिए कोई माबूद वगैरह बनाएं ताकि हम उसकी पूजा करें। उसने ज़ेवरात से बना हुआ एक बछड़ा तैयार किया और उसके अंदर फूंक मारी, उसके अंदर मट्टी डाली हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की। उसने आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। उसने कहा ये तुम्हारा माबूद। वहाँ से बछड़े की पूजा शुरू हो गई। गाय का बछड़ा, उसकी पूजा शुरू हो गई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो बहुत नाराज़ हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलामी एक तो पहले हो चुकी है, जिस वक़्त अल्लाह ताला ने आपको नबुव्वत अता फरमाई थी, वो अताए नबुव्वत थी। नबुव्वत अता फरमाने के लिए अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह ताला से हम कलामी अम्बिया अलैहिस्सलाम की हुई है, लेकिन अक्सर अम्बिया अलैहिस्सलाम की हम कलामी अल्लाह ताला से वास्ते के साथ हुई, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के वो प्यारे कलीम हैं जिनकी अल्लाह ताला से हम कलामी हुई बग़ैर वास्ते से, डायरेक्ट इन्होंने अल्लाह से बात की, लेकिन पर्दे में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ भी मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उन्होंने भी अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल फरमाया डायरेक्ट। और मेरे और आपके प्यारे पैगम्बर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शब-ए मेअराज में अल्लाह ताला की हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ आपको भी, और वो भी डायरेक्ट हुआ। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए, अल्लाह से हम कलाम हुए, बहुत मज़ा आया, मोहब्बत अंदर और बढ़ गई। इन्होंने अल्लाह ताला से एक दरख्वास्त कर दी कि या अल्लाह, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि आप मेरी ज़ियारत नहीं कर सकते। दुनिया में, इस जहान के अंदर अल्लाह ताला का दीदार नामुमकिन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा फिर दरख्वास्त पेश की तो अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है प्यारे कलीम, ये सामने पहाड़ है, हम इस पर अपनी तजल्ली डाल रहे हैं, अगर ये बर्दाश्त कर जाता है तो ठीक है, तुम भी देख लेना। अल्लाह ताला ने पहाड़ पर तजल्ली डाली, एक रोशनी पहाड़ पर पड़ी। अल्लाह ताला के नूरानियत में से प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिसाल देकर इरशाद फरमाई तो फरमाया, हमारी जो सबसे छोटी उंगली है, इसके पोरे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा और रख के फरमाया कि ये पोरे का जो छोटा सा किनारा है, सिर्फ इतनी रोशनी मेरे अल्लाह ने अपनी तजल्ली की पहाड़ पर डाली, जिससे वो रेज़ा रेज़ा हो गया। और उसको देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। जब आपको इफाका हुआ, आपने अल्लाह से दरख्वास्त की कि या अल्लाह, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने दरख्वास्त गलत पेश कर दी, और सबसे पहले मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि दुनिया में, दुनियावी ज़िंदगी में, जागती आँखों में कोई अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता। हाँ, ख्वाब में अल्लाह का दीदार मुमकिन है, क्योंकि ख्वाब दूसरा जहान है। यहाँ हमारे पास दुनिया में बहुत से जहान हैं। एक आलम अशबाह होता है। आलम अशबाह किसको कहते हैं कि आईना के अंदर जो हम अपनी शक्ल देखते हैं, उसको आलम अशबाह कहा जाता है। जो कुछ देख रहा है वो इंसान की ज़ात नहीं है, बल्कि ज़ात के मुशाबे होता है।
اگرچہ خود ذات نہیں ہوتی، اس لیے اس کو عالم اشباہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے عالم رؤیا کا۔ انسان خواب کی حالت میں مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، مختلف انداز دیکھتا ہے، اس کو عالم رؤیا کہتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا جہان ہے انسان کے لیے۔ اس کے بعد ایک تیسرا جہان ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد جب انسان اس جہان میں پہنچتا ہے، وہاں کے معاملات اس کے مطابق پیش آتے ہیں، یہ عالم برزخ ہے۔ چوتھے نمبر پر عالم مثال ہے۔ اس جہان میں وہ چیزیں خاص اسی طریقے سے ظاہر ہوتی ہیں جو اس جہان کے مطابق ہیں۔ اس کے بعد عالم ارواح ہے، یہ بھی بہت بلند ہے، اس کا اپنا نظام ہے۔ اس کے آخر میں عالم جبروت ہے، جو بلند ترین مقام ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء پاک کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری جہان ہے عالم لاہوت، جو وراء الورا ہے، جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، وہی ذات خداوندی ہے۔ تو دنیا میں جاگتی آنکھوں کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، ہاں خواب میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے اور یہ ممکن ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَوَعَدْنَا، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلتاً 30 راتوں کا۔ یہاں پر وعدنا نہیں فرمایا، وعدنا فرمایا۔ وعدنا وہ ہوتا ہے جو وعدہ دونوں جانب سے ہو۔ ایک وعدہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھا اور ایک وعدہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ کی طرف سے وعدہ یہ تھا کہ اے پیارے کلیم، آپ 30 راتوں کا اعتکاف کیجئے، ہم آپ کو کتاب عطا فرمائیں گے۔ تو دونوں جانب سے وعدہ تھا، ادھر 30 راتوں کا اعتکاف اور ادھر کتاب تورات۔ تورات کا معنی ہے قانون۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے پورا کیا اس کو بِعَشْرٍ، 10 سے۔ پہلے 30 راتوں کا اور پھر 10 راتیں مزید شامل کی گئیں۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پھر پورا کر دیا، پوری ہو گئی میقات ربی، تیرے رب کی مدت، اس کے رب کی مدت 40 لیلہ، 40 راتیں۔ اللہ کی جو مدت تھی 40 راتیں وہ مکمل ہو گئیں، اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں مکمل کر کے واپس تشریف لائے۔ جب جانے لگے، وقال موسیٰ، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِأَخِيهِ، اپنے بھائی ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام سے، اخلفنی فی قومی، میرے نائب بنے رہو، فی قومی، میری قوم میں، میرے نائب، میری قوم میں میرے نائب بن کے رہو، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور مت چلنا مفسدین کے راستے پہ، یہاں جو فسادی لوگ ہیں ان کے راستے پر مت چلنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، آپ سے 3 سال بڑے ہیں۔ آپ نے جاتے وقت ان کو اپنا خلیفہ اور نائب مقرر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی گھر کے سربراہ کو یا کسی بھی سربراہ کو کسی دوسری جگہ جانا ہو تو اپنا نائب بنا کر پھر روانہ ہونا چاہیے، تاکہ پیچھے جو معاملات ہیں وہ احسن انداز سے چل سکیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام لِمِيقَاتِنَا، ہمارے وعدے کو، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا کہ 40 راتیں مکمل کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ وعدہ مکمل فرما لیا۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا اس نے اپنے رب سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل فرمایا، اس میں اتنا مزہ آیا، محبت بڑھ گئی، بے چین ہو کر اللہ سے درخواست کر دی۔ قال، عرض کیا، ربی ارینی، اے اللہ، اے میرے رب، ارینی، دکھا مجھے،
अंजुर इलैका, मैं देख लूँ आपको। ऐ अल्लाह आप पर्दे उठा दीजिए कि मैं आपको देख सकूँ। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और आकर अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? आज मैं अल्लाह ताला के बहुत करीब हो गया, आज मैं अल्लाह को बहुत करीब देखा। कितना करीब? सिर्फ मेरे और अल्लाह ताला के दरमियान 70,000 नूरानी पर्दे बाकी रह गए थे। सय्यदुल मलाइका अल्लाह का दीदार कर रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं कि मेरे और अल्लाह के दरमियान 70,000 नूरानी पर्दे सिर्फ बाकी रह गए। तो अल्लाह की ज़ात पर्दों के पीछे छुपी हुई अल्लाह की ज़ात के सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरख्वास्त होती है, ए अल्लाह रब्बी अरिनी, ए मेरे रब दिखा मुझे, अंजुर इलैका, कि मैं आपका दीदार कर सकूँ। क़ाल लन तरानी, फरमाया अल्लाह ताला ने, लन तरानी, तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकेगा। यानी जागती आँखों दुनिया में रहते हुए मेरा दीदार नामुमकिन है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इंसान के पास इस आलमे दुनिया में जागती आँखों ताकत नहीं है कि अल्लाह का दीदार बर्दाश्त कर सके। अल्लाह के दीदार की जो तजल्लियात हैं बर्दाश्त करने की इंसान में ताकत नहीं। जहाँ तक मामला ख्वाब का है, वो आलमे रोया है, वहाँ और मामला है, वहाँ इंसान के पास कुछ ताकत हो जाती है। और इसी तरह आलमे आखरत में जाकर वहाँ जब इंसान जन्नत में जाएगा, वहाँ हर जन्नती को 1 हफ्ते के बाद अल्लाह का दीदार नसीब होगा। अल्लाह वहाँ ताकत अता फरमाएं। फ़इनिस, फरमाया अल्लाह ताला ने, वलाकिन इंजुर इलल जबली, लेकिन तू देख, इलल जबली, इस पहाड़ की तरफ। ये सामने कोहे तूर का ही एक हिस्सा था। अल्लाह ने फरमाया इस तो देखो। फ़इनिस्तक़र्रा, फिर अगर वो ठहरा रहा, मकानहू, अपनी जगह पर, फ़सौफ़ तरानी, तो फिर तू भी मुझे देख लेगा। अगर पहाड़ मेरी तजल्ली बर्दाश्त कर गया तो ए प्यारे कलीम, आप भी मुझे देख पाएंगे। देखो पहाड़ को कि पहाड़ बर्दाश्त करता है या नहीं करता। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु, फिर जब तजल्ली डाली उसके रब ने, लिल जबली, पहाड़ पर, जालहू दक्कन, तो कर दिया उसको रेजा रेजा। दक्कन का माना रेजा रेजा, पहाड़ पिस गया, फट गया, रेजा रेजा हो गया। वखर्र मूसा सईका, खर्रा का माना गिर पड़े। मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सईका, बेहोश होकर। फलम्मा, फिर जब, अफाका, अफाका हुआ, होश में आए। क़ाला, फरमाया, अर्ज़ किया, सुबहानका, आपकी ज़ात पाक है, तुबतु इलैका, मैंने तौबा की आपके सामने, मैं तौबा करता हूँ कि मैंने दरख्वास्त गलत पेश कर दी। व अना अव्वलुल मुमिनीन, और मैं पहला यकीन करने वाला हूँ। किस बात का यकीन? कि अल्लाह की ज़ात को आलमे दुनिया में जागती आंखों कोई नहीं देख सकता। मैं सबसे पहले इस बात का यकीन करने वाला। क़ाल या मूसा, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, इन इस्तफ़ैतुका, बेशक मैंने मुंतखब किया तुझे, अलन्नासी, लोगों में से, बिरिसालाती, अपनी रिसालत के वास्ते, व भी कलामी, और अपनी कलाम के वास्ते। बनी इसराइल की आबादी उस वक़्त 6,70,000। अल्लाह ने उस आबादी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब फरमाया अपनी रिसालत के लिए और अपनी हम कलामी के लिए। फरमाया फ़ख़ुज़, फिर ले लो, मा आतैतुका, जो मैं दूँ तुझे, वकुम मिनश्शाकिरीन, और हो जाओ शुक्र करने वाले। जो मैं तुझे चीज़ दे रहा हूँ इसको ले लो और शुक्र गुज़ार बन जाओ कि अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है। वकतबना लहू, और हमने लिख दी उनके लिए, फिल अलवाहि, तख्तियों पर, मिन कुल्ली शैइन, हर किस्म की, मौइज़तन, नसीहत,
अल्लाह ताला ने तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत लिख दी। व तफसीलन लिकुल्लि शैइन, और हर चीज़ की तफसील अल्लाह ताला ने तख्तियों पर लिख दी। ये तख्तियाँ कौन सी थीं? मुराद इससे तौरात किताब की तख्तियाँ हैं जो लिखी हुई आसमान से अल्लाह ताला ने तख्तियों की सूरत में इकट्ठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाज़िल फरमा दी। फ़ख़ुज़हा, पकड़ लो इनको, बिक़ुव्वतिन, ज़ोर से, वअमुर, और हुक्म करो, कौमका, अपनी कौम को, यअख़ुज़ू बिअहसनिहा, कि वो पकड़े रहें इसकी अहसन बातें। इसके अंदर सारी बातें बहुत अहसन हैं, बहुत खूबसूरत हैं। अपनी कौम को जाकर बताओ कि इसकी प्यारी प्यारी बातों को पकड़ें और इस पर अमल करें। सउरीकुम दारल फासिकीन, अन करीब मैं दिखाऊंगा तुम्हें फासिकीन का घर। यहाँ फासिकीन मुराद इससे नाफरमान हैं और फासिकीन तस्निया है। दो घर मुराद हैं यहाँ पर। इससे कौन से घर दो मुराद हैं? इसमें मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि एक तो मुल्क शाम मुराद है, क्योंकि इस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के साथ सहराए सीना वहाँ ठहरे हुए थे, वादी ती में, और वहाँ से अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होने के लिए तशरीफ़ लाए। और यहाँ पर अल्लाह ताला आयत के इस आखिर में वादा फरमा रहे हैं कौम से कि आपका काम है तौरात किताब को पकड़ना और इस पर अमल करना, और मेरा वादा तुम्हारे साथ क्या है कि सउरीकुम दारल फासिकीन, मैं दिखाऊंगा तुम्हें फासिकीन का घर। दिखाने से यहाँ मुराद ये है कि फासिकीन के घर मैं तुम्हें दे दूँगा, नाफरमानों के घर। यहाँ नाफरमानों से मुराद कौम अमालका, जो कि मुल्क शाम पर उस वक़्त काबिज़ हो चुकी थी और फ़लस्तीन पर काबिज़ थी, और मुल्क मिस्र जहाँ पर फ़िरौनी लोग काबिज़ थे। यहाँ मुराद फासिकीन से ये तीनों मकामात मुराद हैं कि अल्लाह ताला वादा फरमा रहे हैं कि आप लोग किताब तौरात पर अमल कीजिए, और मैं अल्लाह तुमसे वादा करता हूँ कि इन तमाम घरों का वारिस मैं तुम्हें बना दूँगा। चुनाचे तकरीबन 5 सदी तक ये लोग खाना बदोशी की ज़िंदगी में रहे, और यहीं पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो गया, हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो गया। उसके बाद हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्द भी थे और आपके खलीफा और नायब भी थे, अल्लाह ने उनको नबी बनाया, और फिर उनकी सरपरस्ती और सरबराही में ये लोग निकले, और अल्लाह ताला ने इनके हाथ पर फतह अता फरमाई। मुल्क शाम इनके कब्ज़े में आ गया। फिर आगे आने वाली औलाद के लिए अल्लाह ने इनके लिए मुल्क मिस्र के दरवाज़े भी खोल दिए, और हर तरफ अल्लाह ताला ने मुल्क शाम में, मुल्क फ़लस्तीन में, मुल्क मिस्र में बनी इसराइल की ही बादशाहत कायम फरमा दी और इनको इज़्ज़तें अता फरमा दी। और इसमें हमारे लिए क्या सबक हुआ कि जो कौम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में आती है, अल्लाह ताला की बंदगी में आती है, तो अल्लाह ताला उनके लिए अपनी नेमतों के दरवाज़े खोल देते हैं और अपनी नेमतों का उनके लिए ऐलान फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व